हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा दिए गए 5 सेट में से सेट 1 का है ना क्लास 12 का केमिस्ट्री के प्रश्नों को हम हल करेंगे। ओके, तो आपको 35 सवाल पूछे जाएंगे इस सेट के अनुसार और आपके लिए 1.5 घंटे का समय रहेगा ना। और इसीलिए आप पहले सवालों को हल कर लीजिएगा, उसके बाद OMR शीट में इसका एंट्री कीजिएगा, ठीक है। अंदाजी ढेला नहीं मारना है। ओके, पहला सवाल है The number of atoms in a body-centered cubic unit cell of a monoatomic elementary substance is equal to। ओके, तो BCC में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के हर कॉर्नर्स में पार्टिकल्स होते हैं और एक पार्टिकल होता है एट द सेंटर। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यह नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बराबर होगा, ओके, देर आर 8 कॉर्नर्स एंड 1 एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड अमंग 8 अदर यूनिट सेल्स प्लस the particle which is at the center within the body entirely belongs to that unit cell, and therefore this is plus 1. This is equal to 1 plus 1 equal to 2. Therefore our correct answer is option number A. Okay, now let us come to second question. Molarity of an aqueous solution containing 40 gram of sodium hydroxide in 2 liter of solution is। Okay, molarity is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution. That is, molarity equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter. Now, number of moles is equal to mass by molar mass. So here mass is 40 gram and molar mass of sodium hydroxide. Sodium atomic mass of sodium is 23, of oxygen is 16 and of hydrogen is 1. Therefore molar mass of NaOH will be 23 plus 16 plus 1, that is equal to 40, and this is equal to 1. Now the volume of the solution is given 2 liter, and therefore molarity will be equal to 1 by 2, this is equal to 0.5. Okay, 0.5. So option number, our correct option is A. Okay, now come to third question. Methyl bromide reacts with 2 molecules of methyl bromide react with sodium metal in the presence of dry ether to form ethane and sodium bromide. Okay, this reaction is Wurtz reaction. Okay, Friedel-Crafts reactions are reactions of benzene. Benzene is reacted with alkyl halide in the presence of a halogen carrier to form alkyl benzene. Fittig reaction. 2 molecules of aryl halides when reacted with sodium metal form diphenyl, that is Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction. Okay, 1 molecule of aryl halide reacts with 1 molecule of alkyl halide and sodium metal in the presence of dry ether to form alkyl benzene, that is called Wurtz-Fittig reaction. So this reaction is Wurtz reaction. Okay, next question. When aqueous solution of NaCl is electrolyzed, the product obtained at cathode is। Okay, so this question is ये थोड़ा छकाने वाला सवाल है, ठीक है। तो देखना कि यहाँ एक्वस दिया है कि मोल्टन दिया है कि कॉन्सेंट्रेट दिया है। अगर एक्वस रहेगा तो यहाँ पर तो एक्वस है, इसलिए हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन। अगर मोल्टन या कॉन्सेंट्रेट रहता है तो आंसर होगा क्लोरीन। ओके, अगला सवाल है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन? ओके, हेमाटाइट। हेमाटाइट होता है Fe2O3। कैसीटेराइट होता है टिन ऑक्साइड, ओके, स्टेनस ऑक्साइड। डोलोमाइट होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बॉक्साइट होता है Al2O3 2H2O। तो आयरन कहाँ है? यहाँ पर है। इसका मतलब है कि आयरन का ओर है हेमाटाइट। ठीक, अब नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज NH3, PH3, ASH3, SbH3। तो मोस्ट स्टेबल है NH3। ठीक है, किसी भी ग्रुप में जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड बिटवीन, है ना, द सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन विल बी वीकर। ठीक है, तो इसीलिए NH3 का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है, इसलिए द बॉन्ड बिटवीन, ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सबसे अधिक होगा, इसलिए वो सबसे अधिक स्टेबल होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट? ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट, द एलिमेंट्स which have incompletely filled d orbitals in their oxidation, in their ground state or oxidation state, any of the oxidation state are known as transition elements। ओके, तो इसका आंसर है जिंक। अब जिंक ही क्यों है? देखिए, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3D10 4s2। अब जिंक का स्टेबल ऑक्सीडेशन होता है +2, तो Zn2 प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा Ar3D10। तो हम पाते हैं कि इसका ग्राउंड स्टेट में भी, है ना, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। ओके, इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट Zn2 प्लस में भी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, और इसलिए हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट, इथाइल ब्रोमाइड प्लस अल्कोहलिक KOH ए बनता है, तो ए क्या हो? तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, अल्कोहलिक KOH के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है, और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ होता है तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ एलिमिनेशन होगा, है ना, CH3 से एक H हटेगा, CH2Br से Br हटेगा, मतलब प्रोडक्ट होगा इथीन। ओके, अब एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ ए यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। तो आपको पता है कि जो पार्टिकल कॉर्नर्स पर होते हैं वो 8 अन्य यूनिट सेल के बीच में शेयर किए जाते हैं, इसलिए आंसर होगा डी 1/8। ओके, अगला है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय increasing temperature of the solution, decreasing temperature of the solution, increasing volume of the vessel, diluting the solution। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई = CRT, जहाँ C है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, T है टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये दिखाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए हमारा आंसर है ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
The molar conductivity of an electrolyte increases as dilution increases, temperature increases, dilution decreases, none of the above is correct. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डाइल्यूशन इंक्रीजेस। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इनिशियली the molar conductivity of strong electrolytes is high because they are completely ionized. However, their molar conductivity increases with increase in dilution, and this increase is due to increase in the mobility of ions. In case of weak electrolytes, in the beginning the molar conductivity is low because they are not completely ionized, but as they are diluted, especially near infinite dilution, there is a sharp increase in their molar conductivity, and this increase is due to increase in the number of ions as well as in the mobility of these ions. तो दोनों ही केस में डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। ओके, 12th क्वेश्चन, Mond's process is applied for purification of आयरन, निकेल, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर है निकेल। तो इसमें क्या करते हैं, इम्प्योर निकेल को कार्बन मोनोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है टेट्राकार्बोनाइल निकेल। फिर इसका टेम्परेचर को फिर से बढ़ा देते हैं तो निकेल अलग हो जाता है और कार्बन मोनोक्साइड अलग हो जाता है। लेकिन ये जो निकेल है ये प्योर है ना, ये तो क्रूड निकेल है, अशुद्ध है, और ये वाला प्योर निकेल है। ठीक है, प्योर निकेल है। तो मॉन्ड्स प्रोसेस के द्वारा निकेल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। ठीक, अगला सवाल, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 इज। ओके, मतलब कितना बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, वही सवाल है। तो उसके लिए आपको जानना होगा कि N2O5 का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर है, ये है इसका स्ट्रक्चर। ओके, डबल बॉन्ड O, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास इधर 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर N+, यहाँ N+। अब बॉन्ड गिनती करो, 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका मतलब है कोवैलेंसी है 4। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, aqueous solution of which of the following ions is colorless? Ti3+, V3+, Cr3+, Sc3+। तो यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रतीक का लिखना होगा, जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलरफुल होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलरलेस होगा। तो अगर हम Ti3 की बात करें तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar3d2 4s2। तो टाइटेनियम 3+, ये हो जाएगा 3d1। यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये कलरफुल होगा, कलरलेस नहीं होगा। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन में भी, वनेडियम। वनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3d3 3d3 4s2। तो वनेडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar3d, यहाँ से 2 हटेगा, यहाँ से 2। ओके, तो आपको पता है डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं।
और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अनुसार किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ओके नहीं भर जाएंगे। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हो गया D2। ठीक है, तो जब इसको एक्साइट किया जाता है तो ये भी यहाँ आ जाता है और इसीलिए यहाँ भी ओके। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये भी कलरफुल होगा। ओके, अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 4s1 है ना, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Cr3+, तो ये हो जाए यहाँ से एक हटेगा, यहाँ से दो, तो ये 3d3। तो यहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3d3, यहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं चौथा ऑप्शन। ओके, स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3d1 4s2। तो स्कैंडियम 3+ हो जाएगा Ar। तो आर्गन में तो कम्प्लीटली फिल्ड होता है सभी शेल, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स पेड होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है Sc3+। ओके, अब आते हैं अगला सवाल। इथाइल आयोडाइड प्लस अल्कोहलिक KCl तब बनता है A। तो इसमें A क्या है? तो A सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सब्स्टिट्यूट द्विविस्थापन अभिक्रिया। Cn जाएगा यहाँ, I के जगह में, I जाएगा K के जगह में, तब बनेगा CH3CH2Cl इथाइल साइनाइड। लेकिन अगर KCN के जगह में AgCN रहता तो ऑप्शन नंबर A बनता। तो देखना कि सवाल में क्या दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP इन 3 डायमेंशन से। CCP का मतलब है FCC। तो FCC में होता है 74% ऑक्यूपाइड होता है, सिंपल क्यूबिक में 52.4% और BCC में होता है 68%। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, ये है राउल्ट्स लॉ। ओके, राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो इसके अनुसार P0 माइनस PS बाय P0 is equal to mole fraction of solute। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। EMF ऑफ ए सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, यहाँ दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ निकल प्लस इंटू निकल इज इक्वल टू -0.25 वोल्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर टू प्लस इंटू कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ओके, तो स्टैंडर्ड E सेल बराबर होता है स्टैंडर्ड E कैथोड माइनस स्टैंडर्ड E एनोड। तो अगर दोनों ही पोटेंशियल रिडक्शन के टर्म में दिया हुआ रहेगा तो आपके लिए एक हिंट है, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसको लेना कैथोड के रूप में और जिसका कम होगा उसको लेना एनोड के रूप में। तो ये हो जाएगा 0.34 माइनस 0.34
0.25, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0.34 प्लस 0.25, तो ये होगा 0.59 वोल्ट। ठीक है, 0.59 वोल्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब आते हैं आगे। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, जैसे आप मकाई रोस्टिंग करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं, तो उसको याद कीजिएगा। और ये जो रोस्टिंग होता है ये सल्फाइड आइस का होता है। ठीक है, सल्फाइड आइस का रोस्टिंग करते हैं तो वो ऑक्साइड फॉर्म में बदल जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज रोस्टिंग। ओके, ठीक है, अब आगे। द प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, है ना, ये तो है ओसवाल्ड प्रोसेस। इसमें हम लोग 12th क्लास में 3 प्रोसेस पढ़ते हैं मेनली। हैबर्स प्रोसेस NH3 बनाने का प्रोसेस है ना, NH3। कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 बनाने का मेथड है। तो ओसवाल्ड प्रोसेस के द्वारा नाइट्रिक एसिड कॉमर्शियल स्केल में बनाया जाता है। अब अगला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+ इज। ओके, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar3D9 4s1। ये होता है कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर 2+ का हो जाएगा, वो 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, नहीं 3D9 नहीं, यहाँ होगा 3D10, 18 और 1 मिनट, 18 और 1 19, 19 और 10 हो जाएगा 29। ओके, 3D10, ठीक है। तो Cu2+ तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा Ar3D9 और S में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 0 है, तो हमारा सही आंसर होगा 3A, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब आगे। डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉर्मूला A³ M/ZnA, ऑप्शन नंबर बी NaM/ZA³, ऑप्शन नंबर सी ZM/A³NA, ऑप्शन नंबर डी A³NA/Zm। तो इसका सही आंसर है सी। जहाँ Z है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 1 होता है, BCC के लिए 2 होता है, FCC के लिए 4 होता है। ओके, A होता है एज लेंथ, Na होता है अवोगाड्रोस नंबर, M होता है मास। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। An ionic compound has a unit cell consisting of A ions at the corners of the cube and B ions at the center of the faces of the cube. The empirical formula of the compound is। ओके, तो A कहाँ पर है, कॉर्नर्स में है, तो नंबर ऑफ A हो जाएगा, there are 8 corners and 1 particle at the corner is shared among 8 other unit cells, so this is equal to 1. Now number of B कहाँ पर है, at the centers of the faces of cube, तो किसी क्यूब में 6 फेस होते हैं और नियम अनुसार 1 particle at the center of the face is shared among 2 unit cells, तो ये हो जाएगा 6 × 1/2, तो 2 3 × 6, तो ये हो जाएगा 3, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा AP3। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। Colligative properties of the solutions depend on size of the particle, nature of the solvent, number of the particles, nature of the particles. The correct answer is option number C, number of the particles, है ना, ये परिभाषा से है ना। Colligative properties are the properties of ideal or dilute solutions which depend upon
द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, अगला सवाल है ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज्ड, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज में वाटर ऐड करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें है ना हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा और इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ओके, अब आते हैं अगला रिएक्शन 26। फॉर द हाफ सेल रिएक्शन Ag प्लस AQ प्लस E गिविंग Ag, है ना, सॉलिड Ag, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन विल बी। ओके, एट 298 केल्विन कितना होगा? तो दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस 0.1 मोलार एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस इंटू Ag 0.80 वोल्ट। तो यहाँ आपको अप्लाई करना है नर्न्स्ट इक्वेशन। तो इसके अनुसार E बराबर होता है E0 माइनस 0.059 बाई n इंटू लॉगरिदम ऑफ 1 बाय मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ मेटल आयन है Ag प्लस। ओके, तो ये हो जाएगा 0.80 माइनस 0.059। यहाँ n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, डिवाइडेड बाय 1। ओके, इनटू लॉगरिदम ऑफ 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1। ओके, तो ये बराबर हो जाएगा, ओके, ये बराबर हो जाएगा 0.80 माइनस 0.059 इंटू लॉगरिदम ऑफ 10। ठीक है, 1 बाई 0.1 बराबर हो जाएगा 10। ओके, ये बराबर होगा 0.80 माइनस 0.059, क्योंकि लॉगरिदम ऑफ 10 इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे 0.059। ओके, तो यहाँ एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो 10 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा 1, 9 में से 5 4, इधर बचा 7, तो आंसर होगा 0.741। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब आते हैं अगला सवाल। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 प्लस 2 Al। तो Al3 प्लस को रिड्यूस करने के लिए हमको 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तब ये एल्यूमिनियम में रिड्यूस होगा। अब 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए होता है NF। ठीक है, चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ना, चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बराबर होता है NF। तो यहाँ पर तो है 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू F होता है 96,500 कूलम। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 0, 3 0 सर 0, 3 0 सर 0, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 18 प्लस 1 19, 9, 3 9 जार 27, 27 प्लस 1 28। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, ये सवाल पूछा है आपका प्रैक्टिकल से, सॉल्ट एनालिसिस से। सॉल्ट एनालिसिस तो रिंग टेस्ट होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट होता है NO3 माइनस एसिड रेडिकल का।
ठीक है, NO3 माइनस का होता है। ओके, इसमें दो टेस्ट बोलते हैं करते हैं, है ना, डार्क फ्यूम टेस्ट होता है और रिंग टेस्ट होता है नाइट्रेट का। ओके, नेक्स्ट है कैटलिस्ट यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस इज, है ना, हैबर्स प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो बनता है NH3 और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसलिए ऑप्टिमम यील्ड के लिए ली चाइटेलियर के प्रिंसिपल का अनुपालन करते हुए रिएक्शन कंडीशंस दिए जाते हैं। तो इसी दरमियान कैटलिस्ट यूज किया जाता है और वो कैटलिस्ट होता है आयरन। ओके, 29। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? NH3, PH3, ASH3, SbH3। तो ये सभी हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं। तो ये एटॉमिक साइज से रिलेटेड है। किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। तो जिसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा उसका मतलब जो सेंट्रल मेटल होगा वो और सेंट्रल एटम होगा और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अधिक स्ट्रॉन्ग होगा। तो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा बॉइलिंग पॉइंट इतना ही अधिक होगा। तो क्योंकि एटॉमिक साइज सबसे अधिक सोडियम का होता है, उससे कम फॉस्फोरस का, उससे कम आर्सेनिक का और सबसे कम SbH3 का होता है, और इसीलिए लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा SbH3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 31, इथाइल बेंजीन प्लस क्लोरीन, है ना, हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो A बनता है। अब सनलाइट के उपस्थिति में हो रहा है मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। अब इसमें देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट में प्राइमरी फ्री रेडिकल बन रहा है कि सेकेंडरी बन रहा है कि टर्शियरी बन रहा है। तो अगर इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो प्राइमरी है, क्लोरीन यहाँ CH2 में जुड़ा है जिसमें इधर एक कार्बन जुड़ा है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन A वाला है, सेकेंडरी कार्बन में क्लोरीन जुड़ा है, इसलिए हमारा A अधिक स्टेबल होगा, मतलब यही अधिक बनेगा, तो ऑप्शन नंबर A। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 32। ओके, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन में HI का एडिशन होता है। तो ये मार्कोनी-कोप रूल से है ना, मार्कोनी-कोप रूल के अनुसार अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जब कोई का एडिशन रिएक्शन होता है तो जुड़ने वाले रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उसी कार्बन में जुड़ता है जिसमें कम हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट उसी कार्बन में जुड़ता है जिसमें अधिक हाइड्रोजन होते हैं। तो HI का पॉजिटिव पार्ट होगा H+ और नेगेटिव पार्ट होगा I-। अब यहाँ देखें इसमें तो CH3 जिस कार्बन में जुड़ा है उसका बॉन्ड हो जाएगा, उसमें ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, मतलब इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब I जुड़ेगा उसी कार्बन में जिसमें CH3 है और H जुड़ेगा, है ना, अगला कार्बन। तो इसका मतलब है हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। ओके, अब आते हैं अगला सवाल 33, साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होगा। सिंपल एडिशन रिएक्शन है, जिन दो कार्बन के बीच में ओके 2 डबल बॉन्ड है तो उसी 2 डबल बॉन्ड है उसी 2 कार्बन में एक एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ओके, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 34, ब्यूटेन टू ऑल इज, सिंपल सा सवाल है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। तो ये है आपका ब्यूटेन टू ऑल। ओके, यहाँ इस कार्बन में OH है, तो इसी कार्बन में दो कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं, मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है और इसीलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है।
तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, फिनॉल प्लस इथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथोक्साइड आयन एंड अनहाइड्रस C2H5OH ए बनता है। इसमें तो ईथर ही बनेगा, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर से सवाल है। तो ईथर, डाईइथाइल ईथर तो नहीं बनेगा। ओके, इथाइल फिनाइल ईथर, डाईफिनाइल ईथर भी नहीं बनेगा, इथाइल आयोडाइड भी नहीं बनेगा। ओके, तो मेन प्रोडक्ट होगा इथाइल फिनाइल ईथर। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट सेट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको हेल्प मिली, तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सबों को आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक।